allow me to welcome you and congratulate you on cracking up such a prestigious exam and a globally renowned exam, which makes you let your gut in and out. So you have already been through it. So my heartiest congratulations to all of you for being here. And you have already gone through this world of logic and rationality, mathematics, algebra, geometry, your verbal abilities, your uh, what we call them, your analytical skills. And now this gimmick part is going to come up when you are at the verge of entering into some premier institutions, so that you come up as a world class manager. And currently, I believe I count myself into it, like having a living a life of maths and logic. I still count my value of x, where x is undefined. I hope some of you are from maths and must be getting this idea, the value of x, where which is completely undefined for us, and we are trying to define it. I remember on a different note, some days back, my 10-year-old daughter asked me, why these alphabets get into mathematics. I don't understand algebra. What is this algebra? So it's difficult to tell her, but certainly we understand the value of x. And I also believe if someday your maths teacher asks you in your class what is the value of x, most of you will say, "Sir, wo jaan thi meri," right? So taking ahead, what not to expect from this talk. Uh, I'm not going to be on the technical terms That was mostly. a good one. Thank, Yeah. thank you. Don't expect any kind of technical details into it because it's ever changing. It's not going to stop like a lamppost on the road. It's ever evolving. But our expectations will be how to convert ourselves into a world class manager and what this technology means for us. So, going ahead. Now, if any one of you can mute down and tell me what is the population of the world? Fast. Sir, around 8 billion. Okay. Something more closer if you have the figures in your fingertips. That was close, very close. अप्रोक्स 7 अरब से भी ऊपर. नहीं तो बहुत नीचे चले गए. So it's fine, it's fine. वो तो दिन भर दिन बढ़ते रहते हैं हम, उसकी चिंता नहीं है. If you may have the figure in your hand, like it is 7.88 billion. So you see, 788 crores, 780 crores is a very big number. You know the population of India, it is 140 crores. You know the population of हम यूपी के भैया वाला लोग? Anyone? 7 crore. Oh, sorry, 20 crore. It's 25 crores. 25 crore. Yes, that's the official figure. What our UP government says. Now, what does 25 crores means? Let me translate it into two terms. मालूम है पूरा पाकिस्तान भी around 19 to 20 crores है. You will be surprised कि जो अभी fight कर रहे हैं ना रशिया और यूक्रेन, उनकी combined population is around 60% of the population of UP. तो जो टप्पा खा के बम गिरता है ना, it means a lot to us also. We are the sixth if had been we a country, we would be around sixth populous country in the world. I hope most of you must be knowing this. Now, why do I discuss about the population of the world? You see, when we are talking about technology, the technology is not the master. We are the humans, we are the mortals who are living and crawling upon this planet. The technology should mean something for us. So that's build up for the topic, like where the future goes for technology. It's how we decide it, how much we want it, and how lovingly we want it. Taking ahead, what does tech means to the world? Doing the unthinkable, exploring new avenues, a flatter and faster world, and reduce prices. So how we see that the point number 1 and 2 go hand in hand, doing the unthinkable and exploring new avenues. But what does it mean? Allow me to take a example. Say, sometime back 200 years ago, when you had to cross a river, maybe older than that, what you used to do, people used to get around with timber, they get around wood, they construct a bridge, then they go abroad on the other side of the river. Then fast forward it, you see steel came in, you built up the steel bridges, we cross around.
But as of now in 2023, the question arises, what next? To answer that, you need to think and think again and question yourself. Do you really need to cross the river? Why do you need to cross the river? If you're going to meet someone, if you want to talk to someone, you have technology at hand. सुमित जी, I think आपका slide आगे नहीं बढ़ रहा है, तो are you speaking on the Yeah, same slide. I'm on the same अच्छा, slide. Yes. नहीं, ये future of technology लिखा हुआ भी आ रहा है खाली. I think it says what does tech means to me. And welcome to another Varsity video. Okay. What आप does एक- tech means to the world? I'm just holding on to that slide. नहीं वो आप You सब are पे- on the first slide only. नहीं, first slide ही हो रहा है ये. Yes. So I think Yes, sir. First slide only. Future of एक technology. minute, Sumit. So Yeah. what I'll do, you stop share. Let me share at my end, okay? Because I think there is a glitch. Okay. हाँ, एक मिनट रुक जाइए बाप, मैं उसको कर देता हूँ. Just hold on. एक second. Just give me a second. एक second. Just take 20 seconds doing that. Future of technology. Here you go. I think I'm on the fourth slide, sir. No, it's all right. I mean, no issues. Just 1 second. Don't worry. I'm on to it. Here you go. Share. Can you guys see that? Yes, sir. Okay, जी. एक minute. Let me just play the slide. Play. Can you guys see that now properly? And here's the page you're talking about, right? Yes, the सभी can next- see. चलिए, ठीक है. We have gone through this. So Okay, next one. two This. slides later, one more. One more. Okay. Yes, it will pop up. So, Okay. so you see, why do, as I was saying, that why do we need bridges? We don't need to cross the river now. If we are speaking to someone, you can go through the tech and use it as we are currently doing on Zoom, or maybe in the physical world, if you need to get food. So you have a Zomato on the other side of the river too. They will deliver. You don't need to cross the river. These questions need to be asked. And yes, when Columbus went around the globe and reached the other end, he must have came back to his wife and said, I realized that the world is round, but I say, and quoting it from Thomas Friedman, the world is flat. The world is really getting flatter day by day, and it's getting close. Everything is at arm's length. So you see, what technology makes you get more and more options and reduced prices. Say we will be speaking on this part, and we'll be speaking into two terms, like for services and commodities later ahead as we go on this talk. So you can always tell me when to move the slide, right? Yeah, that's the next slide, please. Okay, here. So speaking on the soft part, where we see we'll move into the real world, the physical aspect of technology, and the soft aspect. So the soft aspect would be covering these parts, wherein most of you must be aware what metaverse is. Do you know the holding company office? Anyone? Anyone? Any listeners? Okay, let's Facebook and the Meta company, which is now it is called as. So metaverse is a complete real virtual world, as you all know. Very recently, we saw some ads by Lenskart, which they are doing it very fine. Through they used augmented reality, and now you can see most of the products are into may or may not fall into the touch and feel category. So certainly the specs and the lenses belong to the touch and feel category. You would like to hold them in hand or to have it on your face. But Lenskart very recently used it through augmented reality, and now Yes, Siddharth. Sir, can you just go back to the last slide once? I just need to take a screenshot. I will share the PPT with you. You don't worry. I think there is somebody in fact like whose mic is on. Lalit भैया ऐसा मत करिए. gone. Fair enough. Yeah. So you fair. see, in the near future, sir, we won't be able to do this, or we won't be doing it by hand as we are manually doing. The systems will silence the other speaker who is not required. So AI will take its course. yes.
So metaverse also includes Internet of Things. So हमने वो सुना ना Alibaba वाला खुलजा सिमसिम. So later in the part also I will be telling, as sir said, I am into electronics. So I was working with IoT home automation, where we used to say to the fan का नाम रख दिया मोटू पतलू, मोटू turn down, motu turn up, motu turn at run at 50% speed. So khulja simsim is a part of Internet Things, which we used to read in the fantasy comics, say some time back. Now 5G and artificial intelligence are accumulated and going to build up the metaverse, the world where you are going to buy and own things apart from the land that you are currently sitting and walking on. It will be the new thing. Why this metaverse is required? I have a very small aspect to say, that it all came up just because of the trust factor. Now, to define this trust factor, I have two components, which are NFT and blockchain. The point, I think anyone would like to unmute and say what is NFT? Non-fungible token. Can anyone define what is non-fungible token? What's the idea behind it? Anyone? Short? No. Sir, not very sure about it, but it is a kind of currency that Go is used in metaverse. Okay. Currency is the basis of this idea, but it is not currency. सर टोकन होता है एक, किसी तरह से आर्ट वगैरह के लिए एक पर्टिकुलर टोकन असाइन किया जाता है. आप टोकन जब बोलते हैं ना, तो इट मींस अ डिजिटाइजेशन, a unique number which identifies. So tokenization, it makes you a complete person. So suppose आप अनुज है, अनुज के ANUJ सबको आप अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दो, it becomes a unique number, right? So assigning unique numbers. So where the idea came up from? मेरा अपना मानना है कि it came up just because we humans lack trust, और उसी पे टेक्नोलॉजी बिल्डअप हुई है. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. फंजिबल मीन्स दोज थिंग्स विच आर रिप्लेसेबल. से सपोज कि मैं गया पेट्रोल पंप पे और उससे बोला है 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, राइट? उसने डाल दिया. फिर मैंने कहा 100 रुपए का और डाल दो, उसने 100 रुपए का और डाल दिया. क्या ये दो बार जो उसने 100 रुपए का पेट्रोल डाला था वो एक ही तरह का पेट्रोल था? मतलब कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एपिसोड्स? एनीवन? No, sir. No. So these are fungible things. Another example of it is, आपके जेब में 500 रुपए, 500 का एक नोट भी हो सकता है, 50 के 10 भी हो सकते हैं, and it could be 5 currency notes of 100 rupees each, right? Is there any value difference created in this episode? No, Sir. No. Correct. So अब ये तो आपने समझ लिया what is fungible, where there is a no difference between the values. अब आप मुझे बताओ, say suppose Shubhika is there and she is owning now currently Mona Lisa's by Leonardo da Vinci, right? अब उसका कोई फ्रेंड जाकर के उसका कॉपी बना लेता है, गुड बढ़िया सा स्कैन करा और कलर प्रिंटर से निकाल लिया, and now he or she boasts, I also have a copy of Mona Lisa. Will you pay the same amount of Mona Lisa to that person? No, sir. No, sir. Why? आपको जो वैल्यू डिराइव हो रही है मोनालिसा को ओन करने की, वो तो मिल रही है ना. ओरिजिनलिटी नहीं. Who says कि वो असली कौन है, नकली कौन है? राइट? तो अब आपकी प्रॉब्लम, आपने अभी किसी ने बीच में प्रॉम्प्ट किया, आई थिंक ज्योति इट वाज, कि जब बेचना होगा तब क्या करेंगे, राइट? तब मुश्किल हो जाएगी. तो यहाँ पर हम NFT को इंट्रोड्यूस करते हैं, where it says that a product maybe generally it is used for music, art, buying spaces in metaverses, जब वो यूनिक है. अच्छा, इसकी मजे की बात, जो बहुत जगह आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, NFT के बारे में, तो कहीं जाके छोटा सा लिखा था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि वो जो यूनिकनेस है ना, वो जब जब सेल होके दूसरे के पास जाएगी, भाई लियोनार्डो दा विंची इज गॉन, इज नो मोर ऑन द प्लैनेट, राइट? अब अगर जब भी वो हैंड्स चेंज करती है उसकी ये मास्टरपीस, डज लियोनार्डो दा विंची गेट्स पेड आउट ऑफ इट? नो. No, sir. बट NFT मेक्स इट पॉसिबल. द ओनर एंड द क्रिएटर, जैसे अभी ग्राइम्स ने सेल किया था, साउथबीज ने ऑक्शन किया था 60 मिलियंस की, और एलन मस्क ने भी किया था, शिबा इनू की आर्ट को निकाला था. द ओनर विल हैव अ डिजिटल सिग्नेचर, digital not in the real signature, but a digital pathway
एक उसके फुटप्रिंट्स बने रहेंगे जहां पर कि ही विल बी कॉल्ड द रियल ओनर. सो द सिस्टम्स कैन आइडेंटिफाई who the current time owner it and what is the past history of it, which again leads me to the next term. This is called ledgering, और ledgering ही blockchain का primary premise है. I hope most of you must be knowing कि blockchain का concept कौन लेकर आया था. Anyone? Elon Musk. Satoshi Nakamoto. No one knows. He's a man or a woman or a person or a group. No one knows. So that was the first article. I think Sorry. he's the one that's created Bitcoin. No, that's the idea is blockchain. Bitcoin is the currency aspect and the usage of and the adaptation of blockchain. So what I'm saying is Satoshi Nakamoto is the first white paper writer of blockchain. Bitcoin is held by someone else and created by ant mining and digging, creating ledgers, creating a chain of evidences. इसका बहुत छोटा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी रियल लाइफ में काम करता है, और लेटर पार्ट में इसको हम समझेंगे कि क्यों गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन से डरती भी हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी से क्यों डरती है. अब आप मान लो कोई रजिस्ट्री कराने जा रहे हो अपने फ्लैट की, ठीक है, क्या क्या चाहिएगा, जरा हेल्प करो मेरी भी. सर आप कौन, आधार लाओ, पैन लाओ, प्रॉपर्टी के पेपर्स लाओ, एनओसी लेकर आओ, अपना आईटी लेकर आओ, राइट. पूछेगा ना, कमाते कितना हो तभी ना तो आपको तुमको लोन देंगे, राइट. नाउ एक काम को करने के लिए मुझे 5 एंटिटीज को लेकर के आना पड़ रहा है, विच इज मीनिंगलेस. अरे बैंक को मतलब है मेरे आईटीआर से ना, उसको मेरे आधार पैन से क्या मतलब है जब तेरे पास पहले से है. और अगर कोई एक्सचेंज मेरा मिडलमैन है, उसको इससे क्या मतलब है कि मेरा आधार पैन क्या, उससे मतलब है मेरे जेब में पैसे हैं कि नहीं, राइट. सो ब्लॉकचेन इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूविंग सिस्टम वेयर आपको उतनी की जरूरत है ना, जो सिस्टम्स उसको वेरीफाई करते हैं कि दिस पीस ऑफ लैंड एंड दिस पीस ऑफ असेट इज ओन्ड बाय दिस यूनिक पर्सन. सो यू सी, trust is an important factor which humans will be played up by the technology as we are going to see ahead. Now coming to the next part, metaverse तो एक application हो गया. So talking about data and the 5G thing, 5G is data on steroids. अब आप ये को समझने में दिक्कत नहीं है कि वो जो बफरिंग होती है ना, वो जो गोल गोल डमरू घूमता है वो तो गायब हो जाएगा. Reduce latency, you need to remember this part, कि this is currently going to be less than 10 milliseconds. Now what is the impact of this? Robotic surgery हम बोलते तो वही है. I have closely seen surgeries, so I know कभी कभी क्या होता है ना कि जब पंक्चर करके वहां पे सूचर लगा रहे हैं, या सूचर लगाने के पहले आपने वहां पे स्कैल्पेल थोड़ा सा मारा, एक इंसिजन किया, ब्लड नहीं आया तो चिंता की बात हो गई. So अगर उसी में लैगिंग होने लगी और अगर वो बफर हो रहा है, तो someone sitting at Medanta Delhi operating someone in a rural area, वो जब तक उसका तब तक खून की नदियां बह जाएंगी ना. So data is going to be a big thing which is going to bring up the health, which is the primary aspect for a human, the education, where virtual rooms जो अभी हम काम कर रहे हैं, in fact अभी हमारी गवर्नमेंट से सिस्टम जिस तरह काम कर रहे हैं, वो तो कहते हैं, मुझे तो लगता है 5 साल बाद तो स्कूल्स भी रिडंडेंट हो जाएंगे. जब सर एक बार ये सर प्लीज कैरी ऑन. यस, सर्जरी वाला पॉइंट दोबारा समझाओगे सर? अब रोबोटिक आर्म्स होती हैं, राइट, यू नो दिस? यस सर. राइट. तो अब हम जैसे रोबोट्स पे डेवलप कर रहे हैं, रोबोटिक आर्म्स हमने डेवलप कर रखी. आपके रूरल एरिया में आपका एक एमबीबीएस या फिर एक हेल्थ वर्कर है who is knowledgeable enough to handle exceptions, right, not first aid, exceptions. लेकिन अगर वहां पर कोई बड़ी सर्जरी कर, हेलो आई एम ऑडिबल? यस सर. यस सर. तो अब कोई सर्जन है दिल्ली में बैठा है, वहां पे वो रोबोटिक सर्जरी कर रहा है. व्हाई टू वेस्ट द टाइम ऑफ विच इज वेरी प्रेशियस फॉर दिस डॉक्टर टू फ्लाई डाउन टू वाराणसी, और वाराणसी में एयरपोर्ट से उतर करके कहीं भी गांव में जाने में मतलब इट टेक्स टाइम. अगर वो टाइम क्या अपना कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, या कैन वी बिकम नॉट मोर प्रोडक्टिव देन वी आर करेंटली? जो हम पहले करते थे, मैंने एक सवाल पूछा था ना आपसे, इफ यू रिमेम्बर, हमें रिवर क्रॉस ही क्यों करनी है, राइट? डज इट मेक सेंस? हेलो, एनीवन? Yes sir. Getting my Yes. point? Can I get your name? You asked the Yes, sir. Yes, question. got Yes sir. Shiv. Shiv. So Yes sir. सो प्राइमरी क्वेश्चंस हमें ना टेक्नोलॉजी से और अपने आप से पूछने हैं कि वो चीजें जो हम पहले कर सकते हैं. नाउ यू सी,
अब आप टेलीफोन लेकर के आप अपने टॉयलेट सीट पे भी बैठ के बात करते हो, राइट? विच वॉज अनइमेजिनेबल इन माई चाइल्डहुड डेज। वो एक लंबा सा वायर होगा और वो फोन तो आप लेकर जा ही नहीं सकते कहीं। सो वी आर डूइंग द अनइमेजिनेबल थिंग्स। सो सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी आपकी हो रही है, हेल्थ केयर रूरल एरियाज में पहुंच रही है। आपको फ्लाई आउट नहीं करना, यू डोंट नीड एयर एम्बुलेंस एट ऑल द टाइम्स in case of exceptions, right? Sir, You see, life can be saved. The idea of technologies is to understand the value of life. Uski value ko define karna. Sorry. sir, I would just want to ask something Yeah. or like add something about robotic surgery. So Mhm. recently, like scientists have developed like a robot which doesn't have a proper body or shape. It's Okay. basically like a chewing gum type of substance with hydrophilic and hydrophobic sites on both the ends. So basically, it's gonna be used for surgeries of cancers and all. So can that be robotic surgery? Yeah, it's already working on. You see, when you say nanobots, you inject the nanobots into your bloodstream and it goes directly to the place. अब जब हम सड़क पे जीपीएस लोकेशन करते हैं, नैनोबॉट्स बॉडी में नहीं पहुंच जाएगा जहां पर उसको सर्जरी करनी है, जो कैंसरस मटेरियल को निकालना है, उस मलाइन एरिया को क्लीन करना है, वो नैनोबॉट्स नहीं कर लेंगे। मतलब Right, sir. Yes, sir. we can think and speak about it. I think most of it is being already taken care of. Right. Right? सर Yeah. सर जैसे रोबोटिक सर्जरी की आप अच्छा, बात कर आप रहे हो, बोलो ना, उसके पहले प्लीज अपना नाम भी बोलो। अनुज अनुज देसाई। अनुज, yes, अनुज। जैसे रोबोटिक सर्जरी की आप बात कर रहे हो, तो हाँ। लोग इतना ईगर थोड़ी ना होंगे इसके लिए, मतलब वो थोड़ा सा डाउट तो आएगा ना उनमें। सर डाउट तो तब भी आया था जब हमने कैलकुलेटर से कंप्यूटर पे जा रहे थे। आई एम कमिंग फ्रॉम द पब्लिशिंग लाइन, तो पहले ट्रिडल प्रेस होती थी ना, एक एक अक्षर एक एक लेटर ना हाथ से लगाना पड़ता था। जब फिर ऑफसेट अब वो कंप्यूटराइज टाइपिंग आई नहीं, तो एक बार में आप पैराग्राफ प्रिंट करते हो। लोगों ने कहा था नौकरियां चली जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा। नथिंग हैपेंस। द सर डाउट आइडिया तो इज, तब भी आया था जब पहला प्लेन उड़ा होगा। बिल्कुल। और अभी क्या है, अभी हमारी एविएशन इंडस्ट्री तो नेगेटिव्स में रन कर रही है। अभी तो कितना Yes, कुछ sir. होना बाकी है। द आइडिया इज कि अभी वेरी रिसेंटली 2 days बैक वन ऑफ माय फ्रेंड हैज टू गेट हिज फादर्स पेसमेकर थिंग डन। मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्टेड यार फ्लाई डाउन और जाओ मेदांता, वहां करा लो। क्यों? आप रोबोटिक सर्जरी पे विश्वास करना एक अलग बात होती है। द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन योर सिटी आल्सो एंड द रोबोट्स विल बी मोर एक्यूरेट देन द ह्यूमंस एट टाइम्स। आप अगर किसी ऑप्थेल्मिक सर्जन से अगर रेटिना का आप ऑपरेशन कराने जाओगे, टेल मी वन थिंग, मतलब आउट ऑफ द ब्लैंक दिस थिंग इज कमिंग ऑन। आप एक ओल्डर सर्जन है, 60 साल के 70 साल के हैं, और एक नया बंदा है 30 साल का, आप किससे कराना चाहोगे? एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी फाइन। एक्सपीरियंस जिसके पास है ज्यादा। एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मेरा तो डर होगा हाथ हिल गया तो। भाई पार्किंसंस होता है ना, हिलता है ना। नॉर्मली सर लोग एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स का देखा जाए तो। Again, what we I'll are go saying with is, the 30-year-old one. so Because they, efficiency is same, sir. You just mentioned. That depends on person to plus person. the plus one, the newer doctor is supposed to be more updated. Yeah. और Yes, I agree. इस अपडेशन के एस्पेक्ट को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर पॉइंट टू टॉक ऑन। तो यहाँ पे आइडिया ये नहीं कि आप किससे करा रहे। अगेन द आइडिया इज वी हैव ऑप्शंस, नाउ वी हैव टू यूज आवर इंट्यूशन। द टुडेज लाइन इज व्हाट आई कॉल इंट्यूशन, एआई calls it the memories from the future. You see, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, आज से 5 साल बाद इसी टॉपिक को आप खुद अपने दिमाग से बोलना कि अब डिसीजन कैसे लूं। Your parameters will change, your grounds will change, and your decision will be shifted completely, right? We have been doing in the past. So going ahead, sir, can you take me to the next slide, please? Sure. Thank you, sir. So now, what is Industry 4.0? Now we are landing into the physical aspect. What we talked about was the soft aspect. I hope everyone is with me. So now getting into physical aspects. Before I get into it, I just need to reiterate the industry progress in a minute, less than a minute. So Industry 1.0 came up in some 1800s, where it was about mass production, industrialization, which came up from Britain. Then a century later in 1900s came up 2.0, which was about oil, gas, and energy. 3.0, as you all know, was about computers and digitization. And now we have landed into Industry 4.0. Now we have the systems, we understand what mass production can do, but
रियली हर चीज का चट्टे चट्टे भर के बना के रख देने से, फैक्ट्री भर देने से या वेयरहाउस भर देने से धंधा नहीं होता. मास प्रोडक्शन इज ऑल्सो नाउ मे बिकम ऑब्सोलीट फॉर सम टर्म्स. उसको भी हम आगे अभी डिस्कस करते हैं. Going on one by one, as you can very easily read, is this slide open for you guys? Anuj, collect the and analyze data for better decision making. Yes, sir. Yeah, yeah. It is there. Yes. So now what we do in Industry 4.0, our systems are continuously collecting and analyzing data. Why do you need this data? You need it for better decision making. What sort of decision making? Again, just we had the example of between two doctors. We need more data to analyze. How many past operations had the first one done? How many the second one? What kind of trainings has he gone through? So we analyze and we do it in real time, and that leads on to better decision making. So as you grow up as world class managers, the primary thing you have to do is maybe not a blue collar job on the factory floor. It will be decision making, the quick and the faster decision making, for which you need more and more of data. Right? So again, the second point says data from a factory floor. Now you see, as I say, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और अपने जैसे बुक पब्लिशिंग में बोलूं, there were 2 points of data collection. One was pre-production and another was post-production. वो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है ना, ये पता ही नहीं चलता था, बिकॉज वो इनपुट और आउटपुट के बीच का इतना बड़ा गैप है ना कि हम उसको समझ ही नहीं पाते थे हमारे लॉसेस कहाँ हो रहे हैं. वो हम कहते थे, उसे हम डेली टर्म्स में कहते थे कि इसे राइट ऑफ करके खत्म करो यार, वो बीच में कहीं गया पता नहीं, उसको कॉस्टिंग का पार्ट बना दो. एंड दैट पार्ट विच वाज सपोज टू बी नेग्लिजिबल वाज अ कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ आवर कॉस्टिंग पार्ट्स, क्योंकि मैं बीच में क्या हो रहा है पता नहीं चलता था. अभी क्या है, आपके ईआरपी, आपका सप्लाई चेन इज फ्रॉम द कस्टमर एंड to from the suppliers end to the buyer end. Everyone is a part of the supply chain. We are collecting data from each and everywhere. We are collecting data from the factory floor and to the end user, the consumer, who is responding in real time. And now we are having the data. अभी तो हमारे देश में उतना नहीं होता. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कभी मौका लगे तो पता करना कि हाउ कोक और ये फ्रीटो लेज, हाउ क्या पागलपन होता है उनका जब उनका वो. अच्छा, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है? एनीवन? अप्रैल टू मार्च. राइट. March to और फिरंगियों का कब चलता है? सर ऑस्ट्रेलिया में जून टू जुलाई है. हाँ. कई जगह कैलेंडर ईयर भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कैलेंडर ईयर. नाउ कैलेंडर ईयर में 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टी होती है. राइट? फेस्टिव सीजन है. So imagine the kind of workload where the factory has to be at least shut down for maybe a minor maintenance and other things, but everyone is out merrymaking. How do they do it? उनको पता कैसे कि अब की बार कितना डिमांड आने वाला है और कितने ट्रक्स को लास्ट मोमेंट पे अपने काउंटर्स और शेल्फ्स को भर देना है. एफएमसीजी तो पागल हो जाता है. जस्ट कभी मौका मिले, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम कैसा होता होगा और मैनेजर्स की कितनी बैंड बजी होती है जब वो करंट डिमांड, प्रेडिक्टिव डिमांड और जो अपने प्रोडक्शन हाउस की जो अपनी कैपेसिटी है उसके बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते. दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड व्हाट यू स्मार्ट मैनेजर्स आर गोइंग टू डू. राइट? गोइंग अहेड, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन. अब ये टर्म ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ लोग जो साइंस बैकग्राउंड से, एनीवन बीएससी समथिंग हियर, आईटी से, तो ऑप्टिमाइजेशन समझ ही रहे होंगे कितनी जान ले लेता है. वेयर यू हैव टू हैव अ लीन फर्म, नॉट अ फैट फर्म. आप ना स्टॉक भर के नहीं रखोगे. तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट और रियल टाइम डेटा इज गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर स्टॉक्स, योर इन्वेंट्री, योर कैश फ्लोज एंड एवरीथिंग. गोइंग अहेड, अभी आपका ना, अभी तो हम समझ रहे थे अभी तो फैक्ट्री आउटलेट में ही चल रहा था ये सब सारी कहानी, बट ऑयल, गैस, माइनिंग, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, इसमें भी ना आपका ये जो डिसीजन मेकिंग, डेटा कलेक्शन इज वर्किंग लाइक मैड. गोइंग अहेड, लास्ट पार्ट ऑफ इट. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, sure. So now what technologies are basically driving industry 4.0, as we just said. First of all, internet of things, as we said. किसी ने IoT को एक्सपीरियंस किया है क्लोजली? एनीवन? नो, आई टेक इट एज अ नो. तो ठीक है.
I was into a business of IoT, which was called primarily home automation. इसका industrial aspects बहुत बड़ा होता है. जब मैं छोटे में बताता हूँ यहाँ पर क्या था, जैसे मैंने बोला कि फैन को रन करना है, आप टेबल पे बैठे हो या आप ऑफिस निकल गए, घर पे आपने एसी खुला छोड़ रखा है, आप कॉस्ट समझ ही रहे हो क्या है और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है, आप ऑफिस से बैठे-बैठे अपने एसी को टर्न ऑफ कर देते हो. सॉरी. नाउ यू आर कमिंग बैक होम. आप अपने कार से उतरते ही आप अपने रूम के एसी को पहले से ही चिल पे डाल देते हो, so that you get an environment. It takes around सर 4 ये minutes. Yeah. शिव. रेगुलेट होता है सर. सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा. वंडरफुल. यस यस यस. उसमें तो बहुत Yes, ज्यादा sir. प्रोडक्शंस में ही आपका प्रोडक्शन का छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आंखों से देखा था. Yes, सपोज sir. ब्लास्ट फर्नेस या फिर कोई फर्नेसेस चल रही है, उन्हें पता है कि इस टेम्परेचर में ब्रेकआउट हो जाएगा, तो अब आप किसी आदमी को थोड़ी वहां खड़ा रखोगे कि भाई टेम्परेचर तू चेक करता रहे. यस सर. सेंसर्स लगे, वो खुद ही शट डाउन मार देंगे, राइट? तो Yes, sir. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन रियल टाइम. अभी जैसे इसका इम्प्लीकेशन घर पे कैसे आता है, यू हैव पेरेंट्स एट होम, ग्रैंड पेरेंट्स एट होम. अब क्या होता है, रात को आप सो रहे हो, लाइट बंद है, राइट? अब ग्रैंड पेरेंट्स को क्या है, कभी कभी पैर नीचे रखे जमीन पे खड़े हुए लड़खड़ा के गिर गए, ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं. नाउ इफ यू हैव अ सेंसर एट देयर बेड साइड, वो जैसे ही पैर नीचे रखेंगे ना, बाय दिस मूवमेंट इट सेंसेस अप और वो लाइट ऑन हो जाती है. इज इट गुड? यस सर. सर हाई एंड कार्स में भी हो रहा है कि घर बैठे बैठे पहले ही हम स्टार्ट करके कूल डाउन कर सकते हैं गाड़ियों को फोन से ही. यस 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 यस. जियो फेंसिंग भी इसी का एग्जांपल है. यस. सो अभी ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब आपके प्रोडक्शन में काम करने लगता है तो एक्यूरेसी क्रिएट होती है और डेटा भी कलेक्ट हो रहा है. अब उसी का एस्पेक्ट फिर जब डेटा कलेक्ट हुआ तो जाएगा कहाँ? क्लाउड कंप्यूटिंग में. यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अब उस डेटा को आप रियल टाइम में प्रोसेस कर रहे हैं, सर्वर्स पे प्रोसेस कर रहे हैं और उसको हिस्ट्री से क्रिएट करके आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. इजंट इट वंडरफुल? आप अपने प्रोडक्शन के साथ साथ अपनी सप्लाई चेन, अपने सेल्स कोऑर्डिनेशंस और अपनी सर्विसेज को भी स्ट्रीमलाइन कर रखे हैं. आप में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा कि जापानीज यूज्ड टू वर्क, जब ये टेक्नोलॉजी का जितना हम डिस्कस कर रहे हो सब था नहीं, तो जापानीज यूज्ड टू, दे हैव अ टर्म कॉल्ड JIT, जस्ट इन टाइम, राइट? जब टोयोटा मित्सुबिशी जब ये बना रहे थे तो वो कहते थे कि भाई हमारे वेयर हाउसेज रन नहीं करते, हमें पता होता है हमारा कौन सा कंपोनेंट कब खराब करना हो रहा है, हम तभी मंगवाते हैं, वी डोंट यूज वेयर हाउसेज की पुराना करेंगे. इफ यू रिमेंबर, इसका और नेसेंट स्टेज में पीछे जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ. माइकल डेल, द ओनर ऑफ डेल कंप्यूटर्स, उसके बिजनेस का सक्सेस ही यही था. वो HP, हेवलेट पैकार्ड और IBM की तरह मशीन्स बनाकर शेल्व्स में रखता नहीं था. व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो रियल टाइम में, आप बोलो सर आपको कितने का प्रोसेसर चाहिए, कितने का आपको रैम रोम चाहिए, आपको कैसी स्क्रीन चाहिए, हमारे पास डेटा, हम तुरंत बनाएंगे, तुरंत देंगे. That was the reason for his success. $200 million in just 1 year. And rest is history. You know it very well. Excuse me, sir. Sorry, yeah? Sir, I use this side. Sir, is Arduino Uno type of IoT device? Arduino is the basic chip, PCB chip, on which IoT is done. और Arduino पे तब तो schools में सिखा रहे हैं सर. हम आप मतलब मेरी जनरेशन तो पुरानी है, आप भी पुराने हो गए, अब वो कक्षा 8 में आने लगा है. You'll be surprised to know. मतलब I जो have old done a workshop on this Arduino Uno device where I constructed a obstacle detector, means Wonderful. robot type. वंडरफुल वंडरफुल. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग डन एट होम. अभी तो और छोटे छोटे बच्चे इसको बनाने लगेंगे. मुझे तो लग रहा है 2-3 साल के अंदर क्लास 6 के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट चला जाएगा. ये नॉट अ बिग थिंग, Yes, sir. है ना? आपको जब आप इतना जानते हो तो नेक्स्ट आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जिग वेव और आई एम फॉरगेटिंग द टर्म व्हिच इज विद R, जिस वेव्स पर ये काम करता है, दीज आर मोस्टली इंफ्रारेड, राइट? बस इतना एस्पेक्ट काफी है इसके लिए. अगर आप टेकी नहीं हो तो इतना आपको पता होना चाहिए. Yes. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मुझे सॉरी जरा सा फीडबैक दे दीजिए. एम आई गोइंग ऑन द राइट स्पीड एंड पेस? Am I Absolutely. speaking too Yes, fast? sir. Yes, sir. Absolutely. It's very interesting. And I Okay. hope Yes, in fact you guys are taking notes. Just don't worry about the PPT. It will be shared. Don't मैंने worry. इसमें सब डेटा भर दिया, आपको ये हेल्प कर देगा. टू एटलीस्ट इसके हेडिंग्स को तो आप अपने मेमोरी में कर लेना. अगर आप इंटरव्यूज में जा रहे हो, अगर आप इसके 4 लाइन भी इसके निकाल देते हो ना, तो यू आर एट पार विद मोस्ट ऑफ द टेकीज इफ यू आर नॉट अ टेकी. Perfect. Okay. You can carry on. सो Just let me know जब भी आगे बढ़ाना हो आपको, ठीक है? यस यस यस. सो द थर्ड पार्ट इज AI एंड मशीन लर्निंग. इसके बारे में जो नहीं जानते, थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे. और अब इसके इंस्टांसेस में ये है कि इंडस्ट्री का ना सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये होता है ना कि जिस दिन मशीनरी रुक जाती है,
सी जो फर्स्ट हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था उसमें मास प्रोडक्शन था, बेल्स एंड बेल्स ऑफ कॉटन निकल रहा है दिन भर। आज भी ये थंब रूल कहा जाता है, अ मैन शुड वर्क अराउंड 8 to 9 आवर्स, क्योंकि एक अब तो ह्यूमन राइट्स उसको ले लेंगे। एंड यू विल सरप्राइज टू नो इफ आई मे ऐड ऑन, हम तो अभी भी 60-62 घंटे 70 घंटे काम करते हैं इंडियंस। जर्मन्स आर लुकिंग गोइंग डाउन फ्रॉम 40 to 39, और अभी सुनने में आया था जर्मन्स आर प्लानिंग फॉर 32 आवर वर्क वीक। पागल लोग हैं, मतलब वो तो काम ही नहीं करेंगे शायद, हम ही गधों की तरह काम करते हैं 60-70 घंटे हफ्ते का। यू शुड हैव दिस फिगर्स इन माइंड। तो अब वो डाउन टाइम, मशीन्स आर सपोज टू वर्क 24 आवर्स अ डे, दे डोंट हैव अ ब्रेक, दे डोंट गो फॉर अ चाय सुट्टा ब्रेक, राइट? तो 24 घंटे काम कराने के लिए तो उससे ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा कि इनका डाउन टाइम ना आए। द लेसर द डाउन टाइम, द हायर इज योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन रिजल्ट्स, राइट? तो हमें एआई और मशीन लर्निंग पहले से फोरकास्ट करके दे रहा है कि इसका डाउन टाइम कब आना है। इसको थोड़ा सा आगे सर नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज ले चलिए, तो वहां पे इसको मैं और बता दूंगा। नाउ अभी हम आते हैं दो टर्म्स में, जहां पर कि मैं अभी बता रहा था एआई के, उसी का पार्ट आता है डिजिटल ट्विन। अब भाई स्कूल में बचपन में हमने देखा था ना, देयर इज अ क्लास वर्क कॉपी एंड अ रफ वर्क कॉपी, से यस? सो गए सब? Yes, Sir. sir. Yes, sir. सो यू हैव अ रफ कॉपी, यू हैव अ डिजिटल ट्विन। आपकी मशीनरी जो रन कर रही है उसका रेप्लिका आप बगल में चला रहे हो। सर यू आर मूविंग अहेड ऑफ टाइम्स। आपकी मशीनरी तो रन कर रही है, आप ड्राई रन चला रहे हो और उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करके नेक्स्ट लेआउट के लिए आप तैयार हो। अच्छा, लेआउट के बारे में बोलते समय मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे दूं। मालूम है ये मैनेजमेंट कब पैदा हुआ था? जब फादर ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड हेनरी फ्योल, तो इनकी थियरीज में, और जैक वेल्च तो बाद में आते हैं, थॉमस फोर्ड जिन्होंने फोर्ड कार्स के जनक जो है, तो इनके नाम जब आते हैं ना, इन्होंने करा क्या था, सिंपल सी बात, कि फैक्ट्री में ना स्ट्रीमलाइन करो, प्लांट को लेआउट करो। प्रोडक्शन ए जब हो जाता है तो वो प्रोडक्शन बी यूनिट उसके बगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इट शुड बी एट द कॉर्नर, एट द अदर कॉर्नर ऑफ द फैक्ट्री आउटलेट। देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ प्रोसेस, राइट? तो हम प्रोसेसेस के ऊपर तो आज भी काम कर रहे हैं, तरीके थोड़े से बदल गए। अब जैसे कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग चेन्स में देखोगे, टोयोटा की, जापानीज के, वो करते क्या है ना, कि कार या मारुति में भी है ये, द असेंबली लाइन इज रनिंग, जो बंदा उसको असेंबल करे ना वो चलता है, वो साथ साथ चलते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है। द कार इज मूविंग ऑन, वो कार चलते चलते बन रही है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी टेबल पे बैठ के उसे बना रहा हूँ और द नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू टेक इट अहेड एंड डू सम वैल्यू एडिशन एंड द हार्नेस इज फिक्स्ड एंड द सीट इज फिक्स्ड और पेट्रोल टैंक लगाए गाड़ी बन रही। नो, इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑन। सो वी नो इन रियल टाइम्स मेरा कौन सा कंपोनेंट कम पड़ने वाला है, जिसकी वजह से द कंप्लीट असेंबली लाइन विल कम टू अ हॉल्ट। नाइटमेयर, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो डिजिटल ट्विन बना के आप इसके चांसेस को और कम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज अगेन द सेम थिंग। जब हम कहते हैं ना रियल टाइम, अभी का अभी, कब चाहिए? अभी चाहिए, तो वही अभी एज पर, जब वो रियल टाइम डेटा जहां क्रिएट हो रहा है वहीं पर ही हम करेक्शंस करेंगे। वी डोंट वांट डाउन टाइम। तो जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 है, वो अपने डेटा कलेक्शंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वहीं पर करेक्शन करने के लिए तैयार है। नाउ आई एडेड अ टर्म कॉल्ड गेम्बा, वो मैंने अपनी तरफ से डाला है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट अलाउ मी अ मिनट to speak on Gemba, which is be a life-changing term for you also. Are you ready to take it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Gemba comes from the Japanese philosophy, और मैं इसे नाम देता हूँ ना, the dance floor, where the value is being created. अब एक फैक्ट्री का वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रहा होता है? फैक्ट्री फ्लोर पे, राइट? लेट्स गो टू लीकर इंडस्ट्री, कहाँ पे क्रिएट होता होगा? एनीवन? Production process. ओके, आपका कहना है जहां पे बैरल्स और जहां उसकी एजिंग हो रही है, या जहां उसकी डिस्टिलरी में प्रोसेसिंग हो रही है, द डिस्टिलरी इज द करेक्ट टर्म। गुड पॉइंट। इसका एक और पॉइंट है गेम्बा का वहां पे, कैन यू आइडेंटिफाई एनीवन? ओके, द बार, जहां पर की लीकर सर्व हो रही है, जब वो एंड यूजर के मुंह में जाती है वो टेस्ट निकलता है, और जब वहां निकलती है ना, दैट कस्टमर डिलाइट इज द गेम्बा. So you need to understand in your lives also, and this entire process of technology and plant layout and processes, आपकी वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है. अगर आप अपने वैल्यू सेंट्रिक पॉइंट के जितना करीब रहेंगे लाइफ में, अपने पैशंस के पास रहेंगे ना, लाइफ में सक्सेस के चांसेस और प्रोबेबिलिटी उतने बढ़ के आते हैं. इट्स अ प्लेन सिंपल ज्ञान एंड रूल. गोइंग अहेड, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
सो अगेन ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। ये जब स्लाइड आपके पास आएगी तो यहाँ पर हम देख लेंगे व्हाट अ स्मार्ट फैक्ट्री सपोज टू डू, एनालाइज डेटा, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, इस पे बताता हूँ आपको। अच्छा, अभी आप में से इकोनॉमिक्स के कितने लोग हैं? शाउटिंग, नो वन। हेलो, Yes, sir. कितने? Yes. एक। भावेश, ओके। सो अभी आप Yes, sir. पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है अभी आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सब्जेक्ट। जो साइंस है वो उसे समझते होंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, द सेम इंपॉर्टेंस इज ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशल साइंसेज। वो डायनामिक्स जो होती है ना लाइफ की, इंसान की, वो इकोनॉमिक्स से आती है। तो इकोनॉमिक्स के आपको गोल्डन प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे, मे बी इन योर पेपर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स, और इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां पर आपको एक प्रिंसिपल्स में से सेकंड या थर्ड प्रिंसिपल आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल और इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। राइट? मेरे पास 100 यूनिट का ऑर्डर आता है, मैंने फैक्ट्री खोली, सुबह स्टाफ को लगाया, बैच प्रोडक्शन कर दिया। थोड़ी देर बाद ना कस्टमर का फोन आता है, भाई 10 यूनिट और बना दे। एनीवन बताओ इस वक्त मेरी क्या हालत होगी? रॉ मटेरियल चाहिए सबसे पहले, तो मतलब सब कुछ एडिशनल करना पड़ेगा हमें। राइट राइट। नाउ इसका Sir, key depend आपका- upon the capacity of production. राइट, एवरीथिंग इज राइट। जो आपने अभी टर्म बोला ना मैम, एडिशनल। अब एडिशन क्या है भाई? थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल तो पड़ा ही होगा, लेकिन अब ये सोचो ना, मेरा बैच की मेरी कॉस्टिंग जो निकली थी वो 100 यूनिट्स की थी। अब मैं 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊंगा, रॉ मटेरियल तो 10 का ही लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट? लेकिन जो सॉरी द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल है, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जो पूरी मशीनरी रन करेगी, पूरा स्टाफ खड़ा रहेगा उस 10 यूनिट को बनाने के लिए, पूरी एक शिफ्ट लगेगी। कैन यू इमेजिन द पेन इन द एस? राइट? तो यहां पर ना कस्टम मैन्युफैक्चरिंग अब एआई के थ्रू पॉसिबल है। मैं इसका और एग्जांपल आगे देता हूं। एज आई सेड, आई एम इनटू पब्लिशिंग एंड बुक सेलिंग। अभी मालूम है आपको क्या है? आप जैसे बुक्स पढ़ते होगे, यू मस्ट हैव रेड पियर्सन, मैग्रो हिल, पीएचआई, एस चांद, सुल्तान चंद, राइट? सर, Yes, यस sir. सर। आप बोलोगे ना, मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। सो से यस, इससे ज्यादा नहीं, बस यस काफी है। सो अभी मालूम है क्या है? हम तो अभी थोड़ा लगार्ड्स हैं इंडियंस, अभी हमारी वो उतनी पकड़ नहीं हो पा रही, क्योंकि वी स्टिल आर इन अ डायलेमा कि हम 140 करोड़ बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो गोडाउन्स को भर के रखो। अभी हम भर रहे हैं। द फॉरेन काउंटर पार्ट्स, दे हैव ऑलरेडी गॉन टू अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड पीओडी। इट इज कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड। वो ना किताब बना के छाप के रखते ही नहीं। आपने अभी ऑनलाइन ऑर्डर करा ना, वो आपकी किताब अभी छपेगी। एक यूनिट, सिंगल यूनिट विल बी प्रिंटेड फॉर यू। अनइमेजिनेबल। वो अभी तक हमारे देश में हुआ है, बहुत छोटे लेवल पर है, और जब तक वो बड़ा होगा बच्चा, तब तक उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। सो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट स्मार्ट फैक्ट्री सपोज टू डू। ये आपकी 2 साल बाद जब आप इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, ये आपका प्राइमरी टारगेट्स में से एक होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से हम ऑप्टिमाइजेशन पर कैसे जाएं, राइट? और सप्लाई चेन के बारे में जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फोरकास्टिंग है, अपने प्रोडक्शन के बारे में पता है, डाउन टाइम आ गया, तो आप पता कर सकते हो अपनी सप्लाई चेन को रिड्यूस कैसे करना है। ट्रांसपोर्टेशन को पहले, अभी आप में से कुछ लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो उन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा, या बीएससी बैकग्राउंड से, साइंस से होगे, मैथ्स लेकर आए होगे, इकोनॉमिक्स हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी। यस That will सर। play a major role, yes. So वो that will come into play कि सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के थ्रू हम प्ले कैसे करें, अपने कस्टमर्स की डिमांड को, एंड यूजर को खुश भी रखें, और हमारा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट गो डाउन एट एनी कॉस्ट। योर स्टेक होल्डर्स विल फायर यू एज अ सीईओ। किसी को अपने इन्वेस्टमेंट और उससे अपने से कोई मतलब नहीं है, अपनी शेयर होल्डिंग से किसी को प्यार हर किसी को होता है। अभी आपने अडानी के केस में देख ही लिया। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सो अभी ज्ञान तो बहुत सारा हो गया, थोड़ा सा इफ यू अलाउ मी ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर माय केस स्टडीज। और या सो केस स्टडी जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए ना मैंने वही लिखा है जो मैं कर रहा हूँ, तो इट विल बी वेरी रियल। पब्लिशिंग एंड बुक सेलिंग, मैंने आपको बताया कि हम पीओडी पे शिफ्ट हो गए। अ लॉट ऑफ बिजनेस हैज बीन ईटन अप बाय द प्रिंट मीडिया। इट हैज शिफ्टेड टू सॉफ्ट फॉर्म्स। सॉफ्ट फॉर्म्स लाइक अब आप ई बुक्स से पढ़ोगे, अभी आप IIM में जाओगे, वहां पर आपको बुक्स अभी भी मिल रही हैं, बट शायद सेकंड आपकी ईयर तक आपको शायद ना मिले। You have the best in class subscription of journals like Springer, John Wiley, McGraw-Hill, Pearson, Cengage,
एकेडमिक प्रेस, जिनको आप पढ़ेंगे, अपनी केस स्टडीज के लिए पढ़ेंगे, और पढ़िएगा जरूर. But reading might have taken a turn or not, but printing has taken a big hit. और वो अब बुक सेलिंग और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो हिट हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फ्लिपकार्ट एंड अमेजन. वो तो मेरे पार्टनर है ना, जो बुक बना रहा है वो तो कोई तो बेचने वाला चाहिएगा ना. अब तो आपको पता है हिंदी की बुक्स तो अब अंडमान निकोबार भी जाती है. तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. वो तो एक अलग ही क्लस्टर है कि वो एग्रीगेटर कैसे बने हुए हैं. पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज ईटिंग अप दोस थिंग्स. द सेकेंड केस स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ इट इज बीटन अप, IoT जैसे मैंने बताया. अब खुल जा सिमसिम का जमाना था. आई यूज टू कोलैबोरेट विद हाउस मेकर्स, रेनोवेटर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स कि भाई सर नया लगा दे और कोई ये दे दे. रेट्रोफिट स्विचेस है. नाउ यू कैन कंट्रोल इट थ्रू योर ऐप एंड नाउ यू कैन कंट्रोल योर इक्विपमेंट appliances in your whole house. I used to say I am delivering you a smart home, right? And क्या होगा, सुबह आप उठोगे, आपने अलार्म लगा दिया है, पर्दा अपने आप खुलेगा, curtains, the sun rays will fall on your face, you will woke up naturally without any alarm clock, and by the time you're stretching yourself, the coffee maker gives a whistle and the coffee is ready. Your bathroom geyser has already turned on, the water is hot for you to take a bath. Then your car is ready, it drives you, the doors open on its own, you have a digital lock, it closes down and shuts down on its own. If you have a guest at home and you are at your work office, you can digitally press the numbers and the door will open up and your guest can come in without you being physically present. This is all said and done 2 years back. I lost the business because I would say the technology moved at such a high pace that my requirements went down and it moved to DIY, which is do it yourself. The price is reduced by at least 20 times down, right? So what I was selling for 10,000 now is available on Amazon and Flipkart for 500 rupees. You can do it yourself. As someone spoke about Odrino, everything is based on Odrino and Z-Waves. Now comes the next part, cloud kitchens. So for some time I have been doing this Zomato delivery. You see, कोई order करता है Zomato पे आप में से? Yes sir. Yes sir. वाराणसी में ही है, वाराणसी में ही है आप लोग? ये तो नहीं सर, और भी सर जगह चंडीगढ़ की हरियाणा, क्लास है ये। बट मुझे अभी सुन के लगा कि लाइक मैं करता हूँ Zomato डिलीवरी. आई हैड टू आस्क इफ हाँ यू आर डूइंग इट तो योरसेल्फ. सर आज शाम को आप 10 से 12 के बीच में ऑर्डर करिएगा. आई माइट लैंड अप एट योर डोर स्टेप. That's a good one. No, that's not a good one. That's a real one, sir. So I'll tell People you are in about it. Chandigarh, in Gwalior, in Delhi, in Varanasi, everywhere. नहीं, मैं वाराणसी में ही हूँ. Right. I will be available on 10 to 12 shift. Perfect. So Sir, for what I real? saw, yeah, sorry. सर सच Oh, में? come on, you have to listen to that. Come on. So what happens is, no, when I say I am speaking about a case study and I say it's all with me, I'm doing it and so I'm saying it. So ये secondary information नहीं है. What I'm delivering you is all primary information. So I deliver for Zomato. So what I saw, you know, अभी 2 दिन पहले किसी ने क्या ऑर्डर किया, you will be surprised to know. मतलब नई बात तो नहीं थी, सरप्राइजिंग क्या है वो बाद में आएगा. 2 प्लेन पराठा, 1 जीरा राइस. आप में से अच्छा सारे लोग वाराणसी में आए हो? मतलब यू हैव एनी आइडिया ऑफ वाराणसी ज्योग्राफी? नो सर. No, sir. ओके हाँ सर. ओके. No, सो sir. अगर कोई है तो ठीक है, नहीं हो तो मैं Yes, उसको किलोमीटर टर्म्स में बताऊंगा. सर ग्वालियर से बाहर ही नहीं गए अभी तक. अरे अब निकलो, अब निकल जाओ. अच्छा, तो किसी ने ना मुझे वो ऑर्डर किया वाराणसी कैंट स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर. मैं ये सोच रहा था कि भाई तेरे को ट्रॉमा सेंटर इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके बाहर तेरे को खाना नहीं मिल रहा था, तूने 8 किलोमीटर दूर से ऑर्डर किया. आई वॉज थिंकिंग, बट आई वॉज रियलाइजिंग अदर थिंग्स. अब आप इस पूरे प्रोसेस के काउंटर, इसके स्टेक होल्डर्स देखिए कौन कौन है. द वन इज द कस्टमर, द वन इज द मर्चेंट एंड द थर्ड वन इज द राइडर. जो कस्टमर है उसे ऑप्शन ये मिला कि हो सकता है अपने ट्रॉमा सेंटर जहां वो बैठा था हॉस्पिटल के बाहर, वो हो सकता है आई डिलीवर टू अ फ्यू पीपल हु वर फिजिकली चैलेंज्ड. आई हैड टू क्लाइंब 4 floors टू डिलीवर इट टू देम व्हेन दे आस्क्ड. सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस. हो सकता है उसकी तबीयत सही नहीं है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया. आई वाज हैप्पी टू डू इट. तो वो उसको ऑप्शन मिला कि उसको डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है. नंबर 2, हो सकता है कि उसकी पेरिफेरी में जो टेस्ट मिलता है उसे पसंद ना आता हो.
So he orders 8 kilometers दूर से. Number 3, हो सकता है उस वक्त उस प्रोडक्ट पे 60% डिस्काउंट था, उसे पैसे भी बच गए, राइट? मर्चेंट के फायदे क्या है? मर्चेंट का फायदा ये था कि वो भाई एक रेस्टोरेंट है, वो कहाँ बेचेगा भाई? जब आप खाना खाने तो रोटी तो डाउनलोड नहीं करोगे ना, यू विल गो समवेयर टू ईट. सो उसको कौन कस्टमर्स मिलते थे? कौन से होते थे? दोज हु वर मूविंग अराउंड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइदर इट इज अ प्लान्ड बाइंग और अ इंपल्सिव बाइंग, वॉक इन. लेकिन अभी उसने 8 किलोमीटर दूर भेजा. इजंट इट अ वाव फैक्टर? टेक्नोलॉजी ने एक 8 किलोमीटर दूर उसका सामान बिकवाया, or whatever terms जो उसने डिस्काउंट दिया वो अलग मैटर है, but now his reach is 8 kilometers away. And the third state person एक unexpectedly एक नई वैकेंसी, एक नई जॉब, एक नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, who is patching up these two people. You see, अब क्या टेक्नोलॉजी जॉब और बिजनेस को बढ़ावा दे रही है? I have to say a thumbs up. टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए जब आप डिस्कशन करेंगे, एंड दिस शुड बी अ टेक अवे, ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी कुड बी बैड, बट इन माइक्रो टर्म्स इट इज गुड. इट इज वी हु आर गोइंग टू बी गुड और बैड, जो हम उसके यूजर्स हैं, बट इट टर्न्स आउट गुड. साथ में मैंने देखा कि जो रोड्स बनाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हाउ इट हेल्प्स द राइडर टू सेव मनी, राइट? सेकेंड पॉइंट, yes, someone at BHU ordered a half kg biryani, right? The customer, she paid me, I remember, 100 rupees. That was a cash on delivery order. And when I closed down that delivery, you know what my trip earning was? 70 rupees. Can you imagine? 100 rupees की बिरयानी, 70 रुपए तो मेरा, तो क्या बिरयानी 30 रुपए की है? That was a genuine question. मैं तो काफी देर तक खड़े होकर सोचता रहा, ये क्या मजाक चल रहा है? That was my initial days into it when I was learning. तो मेरी समझ में नहीं आया. अब लेकिन उसको अगर आप रियल टाइम में अब जरा जाओ और बोर्सेस पे, बोर्सेस मींस योर इंडेक्स. जोमेटो का शेयर मेरे पास कुछ यूनिट्स थे करीब 1 महीना पहले, और मुझे डाउनटर्न का थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि वॉर भी खिंचता जा रहा है, बजट भी आने वाला है, तो आई सोल्ड आउट माई शेयर्स ऑफ जोमेटो एट 56 रुपीज. कल वो 47 पे ट्रेड कर रहा था. स्विगी, देयर काउंटर पार्ट, हायर 2000 पीपल. Zomato is currently running at a loss of 2500 crores. सर ये क्या मजाक बना रखा है? Can you think how the money is being burnt? So you need to understand, technology is going to give you leaps and bounds ahead, but you need to understand, are you really playing with it or are you burning yourself? अभी तक मेरी समझ में तो नहीं आया, मतलब प्लीज डोंट कोट इट एनीवेयर एल्स, कि जोमेटो का फ्यूचर क्या है. मतलब हैड इट बीन एन अमेज़न जो कि कैश बर्न कर रहा होता, आई कुड अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी तो तुम भाई दूसरे का सामान बेच के सीख रहे हो. जब तुम सीख जाओगे तो तुम खुद बनाओगे. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 75% ऑफ द बिजनेस ऑन अमेज़न इज डन बाय 45 कंपनीज ओनली. आप जितने सेलर्स देखते हो अपने चारों ओर, आपके भी जानने वाले बहुत से अमेज़न पर अपने आपके प्रोडक्ट्स डालते होंगे, बट द मेजर चंक गोज टू 45 कंपनीज, आउट ऑफ विच 15 में तो अमेज़न घुसा हुआ है and 3 are directly owned by it, which contributes to 25% of the entire business of Amazon in India. तो कैश बर्न करने का रीजन मेरी समझ में तो आ गया कि अमेज़न बर्न कर रहा है. इट मेक्स अ सेंस. यू आर लर्निंग एंड वन डे यू विल हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउस. यू विल, बट सर जोमेटो के साथ वो केस कैसे होगा? नहीं हो रहा ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा. व्हाई आर दे बर्निंग कैश? अगर वो स्टार्टअप है तो किधर जा रहे हो भाई? मेरी तो ब्लैंक है भाई. मेरे ब्रोकर ने मुझसे बोला जोमेटो के शेयर क्यों खरीदें जब उसका ओनर खुद ही बेच के किनारे हो रहा है. ही वाज राइट. लेकिन थोड़े मेरे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे. मुझे पता था कि कब उसको 49 पे उठाना है, कब 56 पे बेचना है. प्रेडिक्शंस बाय चांस चले गए. अच्छा, बाय द वे, एनी वन ऑफ यू डू डे ट्रेडिंग ऑन शेयर्स? एनीवन? Sir, I don't do it, but I follow. You follow it. Do it. जब तक आप Yes, हाथ नहीं जलाओगे ना सर, मार्केट में उतरोगे नहीं ना, कुछ मिलता नहीं है. नो पेन नो गेन. अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो कोई मतलब ही नहीं रखेगा अगर मैं पूछूं कि आप में से ऑप्शंस ट्रेडिंग कितने कर रहे हो? नो सर. हाँ,
No, sir. Okay. So अभी Paras just messaged that around 60-70% of the startups are burning money. That's true. लेकिन आपका future होना चाहिए ना. Future पता नहीं. जब when I was young like you people, मेरा future forecast 10 years का होता था. अभी तो साला वो साल भर भी नहीं है. यार I cannot imagine. I cannot think in this wild and mad world. एक साल का prediction आप नहीं कर सकते कि अभी अपने shares आप कहीं लगा दो. मतलब SBI was supposed to touch 650. अडानी साहब ने उसको हिला करके 600 से 510 पे ले आए. SBI को हिला दिया. मतलब सबसे पहली बात ऑप्शंस के बारे में अगर आप नहीं कर रहे हो तो डू समथिंग, इट विल गिव यू एन इनसाइट. और वो ना आप उसके जो हमारे एआई जो आजकल इतना चैटबॉट्स के थ्रू कर रहा है, आई मेंशन फॉरगॉट टू मेंशन समवेयर कि अब जैसे इंडस्ट्री क्या कर रही है कि इसका यूसेज भी करती जा रही है इन सारी टेक्नोलॉजीज का. जब चैटबॉट्स का इस्तेमाल करती है जो आपको बताता है, गाइड करता है, तो वो अपना ना टाइम सेव कर रहे हैं. They are moving from being customer centric and discussion driven to content development. You need to remember this. आपको जब अपना काम करने का टाइम मिलता है ना, रिसर्च करने का टाइम मिलता है ना, तो कस्टमर तो माथा चाटेगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सर मेरी गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस लगा दूं क्या? अरे चैट है ना यहाँ पर अपने पास, आर्टिफिशियल, गो एंड टॉक टू इट. द प्राइमरी यूज ऑफ आर्टिफिशियल, एज माय फ्रेंड्स हु आर इनटू टेक इंडस्ट्री, दे से कि भाई तेरे जितने भी डिस्कशंस होंगे, यू आर गोइंग टू टॉक टू अ कंप्यूटर. कोई इंसान तेरे को केटर नहीं करेगा. व्हाट इंश्योरेंस टू बाई, व्हाट टू बाई, व्हाट नॉट टू बाई, हाउ टू गाइड, वो सब तेरे को चैटबॉट्स करेंगे. अ ह्यूमन विल बी स्पीकिंग टू यू, राइट? सो टेकिंग इट, डिड एनीवन एनी क्वेश्चन ऑन दिस थिंग लाइक जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे? नो. गोइंग एट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, सो अभी हमने जैसे बात की व्हाट इज द फ्यूचर फॉर अस. एज आई सेड, जो हम चाहेंगे ना इंसान के तौर पे, यू नीड टू बी गुड एट हार्ट. तो जो आप देखोगे ना वही आपको फ्यूचर में दिखाई देगा. अभी इसी सारी कहानी के बीच में ना ये जो हम लोग ब्लॉकचेन को डिस्कस कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, एनएफटी की बात करें ना, ये सब भी आ रहे हैं. गवर्नमेंट ना नहीं चाहेगी, यू नो, ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स में जब आप सॉफ्ट पार्ट पे, उसकी थियरी पे नहीं, उसके एसेंस पे डिस्कस करोगे, प्लीज इसको थोड़ा सा आप कहीं और पढ़ के रिवैम्प भी करना जो मैं अभी बोलूंगा. मालूम है गवर्नमेंट को डर लगता है. ब्लॉकचेन कहता है कि एक, अच्छा इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ. आप में से किसी के हाथ में अगर करेंसी नोट हो तो, या याद हो आपको, तो लिखा होता है ना, आई गारंटी टू द बियरर ऑफ दिस 100 rupee नोट टू डिलीवर अ वैल्यू ऑफ सच एंड सच, साइंड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, राइट? इंग्लिश हिंदी में लिखा होता है. What it is, अरे एक नोट का टुकड़ा फाड़ के 2 टुकड़े कर दूं, उसके तो 5 रुपए किलो भी, उसके 5 पैसे भी ना मिले, राइट? इज इट सम वैल्यू? नो, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ अ सिग्नेचर. सो द क्वेश्चन अराइजेस, ये नोट पैदा कैसे हुआ था? जो इकोनॉमिक्स वाले हो थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं कहीं ज्यादा चला जाऊं. हुआ क्या था ना, पहले हम बार्टर करते थे. हाँ, अभिषेक के पास दूध होता था, मेरे पास चावल होता था. मैं कहता था भाई आज घर में खीर बनानी है, थोड़ा चावल ले लो, थोड़ा सा दूध दे दो, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग से निपटा लेते थे. तो ठीक है. फिर मैं अगले दिन आ गया, भाई थोड़ा सा दूध दे दो. बोला यार तेरा रोज का नाटक हो गया है, रोज का दूध, आज है ही नहीं दूध मेरे पास. तो अब मैं परेशान कि यार करूं क्या. तो मैं ना सेठ के पास गया. सेठ से बोला कुछ करो यार, इसका कुछ मतलब तुम रख लो. अच्छा दे दे चावल. उसने मुझे कागज लिख के प्रॉमिसरी नोट दे दिया. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, प्रॉमिसरी नोट. यस. तो कहा कि इसका लाके पेमेंट ले लेना. अब ले तो लिया. अब अगर सेठ की नियत बदल गई तो, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बैंक उस दिन पैदा हुआ. आप में से कुछ लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, राइट? बैंक गारंटी. यस. It is the third party which guarantees the business between two people, right? बैंक उसी दिन पैदा हुआ था जिसने कहा था कि अच्छा तुम लोगों में ट्रस्ट नहीं है ना, आई कम इन टू प्ले. तो भाई उसको बिजनेस किसी को कब मिलता है? अ कंपनी अर्न्स बिजनेस व्हेन इट डिलीवर्स अ सॉल्यूशन. द बैंक डिलीवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रस्ट. उसने कहा तुम मेरे पास आओ और तुम पैसे दे दो, तुम उसके बदले तुम्हें नोट मिल जाएगा, तुम नोट ले जाके सामान खरीद लेना. बार्टर विल एंड. द बार्टर एंडेड. द गुड ह्यूमंस एंडेड, एज आई से. अब वो नोट लेकर के आ गए. अब आप मुझे एक बात बताओ, बैंक तो ट्रस्ट पे काम कर रहा है ना, राइट? राइट? यस सर. तो सैलरी क्यों ले रहा है? सैलरी क्यों ले रहा है? आप इमेजिन करो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री. वो किस बात का पेमेंट ले रहे हैं? किस बात की सर्विसेज कैसे देंगे अगर वो ना सर्विसेज आर बिल्ड अपॉन योर आइडिया ना.
भाई अगर मैं तेरे को एक शुभिका, राइट, मैं तेरे को Yes, एक sir. कैंडी देनी है, राइट, तो यू विल से अरे यार एक थोड़ा सा पैकेज भी दे दो ना, उसमें रख के कैंडी ले जाएंगे, राइट, यू विल टेक इट, यू विल नॉट टेक इट इन योर बेयर हैंड्स, राइट. Right. Now this bag is your service, add-on services. These are built up, but what is the core? The core is the trust. तो Yes. सवाल ये पूछना है क्यों? ब्लॉकचेन क्वेश्चंस दिस. वो कहता है यार मैंने एक लेजर बना दिया, सारे कंप्यूटर्स में फीड कर दिया, जब तक पावर इस धरती पर रहेगी और इंटरनेट जिंदा रहेगा, सबका नाम लिखा रहेगा. आई डोंट नीड अ बैंक. In fact, blockchain says I don't need a government because government भी उसी premise पर आई है, the trust between people. Am I right? Those from Yes. political science try to understand and comprehend this thing. मतलब ये मैं verdict नहीं है, it's just an idea, it should be ingrained. ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट्स की रिलक्टेंस है कि ब्लॉकचेन को नहीं लेकर आना है. क्रिप्टो करेंसी नहीं लेकर आए, क्या लेकर के आए? डिजिटल रुपया. इट इज व्हाट, पेपर नोट को हटा दिया, लेकिन चीज वही है, अब वो डिजिटल हो गई, नंबर्स में है ना, यूनिक हो गई. कायदे से तो उस जो 100 रुपीज का नोट है, अगर मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद, मैंने अभिषेक से जब चावल लिया था, दूध लिया था और उसको 100 का नोट दे दिया था, तो अभिषेक को बाद में अगर वो वापस कर देगा तो एक ट्रांजैक्शन के बाद नोट फाड़ देना चाहिए ना. द प्रोमिसरी नोट एंड्स, राइट, बट इन अ blockchain it never ends, it continues, so there is a value. So my giveaway here would be, you as people who are going to come up as world class managers, you need to upgrade yourself like the medicos and the legal professional people are doing. Continuously पढ़ते हैं. अभी क्या होता है, जितने टेकीज आप में से कोई होंगे ना, वो जाए कोडिंग कर ली, तो देन दे थिंक अब कोडिंग नहीं करनी, अब सब मैनेजरल जॉब करना है. ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि आप गांव से निकल के शहर में आ गए तो अब तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, हाथ गंदे होते हैं मिट्टी में, आई नो इट वेरी वेल. ऐसा नहीं होता है. You have to constantly learn, otherwise this slippery road called obsolete, the obliterator, will throw you out of the entire system. You have to do a sustainable learning continuously. So just forgive me, my वहाँ पे non reluctance होना चाहिए था, है ना, reluctance लिखा है, so don't take it otherwise someone will point it out. So now again, coming to the soft part, ये जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का इंटरेक्शन है ना, ह्यूमंस नीड टू टॉक, बाई, वर्क, स्टे टुगेदर विद ह्यूमंस, एंड टेक्नोलॉजी शुड नेवर ever distort this relationship. Technology can disrupt new things, bring in new things, but it should never curtail down the relationship of humans. At least I guess, I hope we'll continue to be creative at large. So next slide, please. So I think this is it. I would like to thank you and would like to take up any questions, if any. Yeah, so guys, raise your hand. I am stopping this share, and you can just put your hands up rather than speaking all at a time if you have any questions, which is relevant to the context of what we're doing today. So can you just explain once again why the government of India is not regulating blockchain, and a little difference between cryptocurrency and digital currency? I'll try to. As I said earlier, don't take it as my verdict why government is reluctant to it. You see, Americans and those people in the West are always experimenting new things. Also, their federal bank is not in tandem or behaves like what our RBI does. RBI is still under the government. It's supposed to be the exchequer of the government, but it is not in complete totality or in complete ownership of it itself. Well, the Fed Reserve is, so they keep on experimenting new things. They have n number of cryptocurrencies over there. Yes, the idea with artificial intelligence and cryptocurrency and blockchain is there is no one individual ownership. That's why people are reluctant to it. They say, कल को वो नोट पे तो गवर्नर साहब ने लिख के दिया था ना, I will deliver the value of this product, तेरे को सोने का टुकड़ा ही देंगे, because currency is pegged by the gold. I'll give you the value of gold in that terms. लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई बैकिंग नहीं है. It has no physical asset to it. They are just numbers. अगर किसी दिन पूरी धरती की बिजली चली गई, इंटरनेट अगर फेल हो गया, everything is gone, which is difficult to happen.
राइट? तो रिलक्टेंस इसलिए है क्योंकि द कोर आइडिया व्हाट आई बिलीव, ये ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, उसको ब्रीच करता है ब्लॉकचेन, चैलेंज कर देता है। तो अंदर की बात सोचेंगे तो ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है द गवर्नमेंट विल नॉट बी विलिंग, वो उसके टर्म्स लाएंगे क्योंकि वो खुद ही चैलेंज हो जाएगी ना। भाई अगर मैं और सिद्धार्थ अगर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और हमें कोई थर्ड पार्टी चाहिए नहीं टू एज विटनेस टू इट, तो यार वी आर गुड टू गो। अब हम ड्रग्स एक्सचेंज करेंगे कि वेपन्स एक्सचेंज करेंगे कि दूध और चावल करेंगे, इट्स अ डिफरेंट केस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। आइडियोलॉजीज कॉन्ट्रास्ट करती हैं गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आई थिंक सो ब्लॉकचेन का कोर तो चैलेंज कर देता है, वो उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है, जिसपे गवर्नमेंट बिल्डअप है, ट्रस्ट, फेथ इन योर या यस सर। सर आई वाज आस्किंग कि ये डिजिटल करेंसी आप एक बार थोड़े से क्रिस्प मैनर में समझा सकते हैं, बिकॉज मुझे इम्प्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई डू वी इवन नीड द डिजिटल करेंसी। सी मैं इसको बहुत आउटलाइन में टच करूंगा, मैं इसकी बहुत गहराई में अभी जा नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट कम्प्लीटली उसके डेप्थ में मैं भी नहीं गया हूँ। द प्राइमरी आइडिया व्हाट आई सी इज कि नोट और सिक्कों को बनाने की भी कॉस्ट होती है, उनकी स्टोरेज की कॉस्ट होती है, यू नीड बैंक्स एंड रिजर्व्स टू हैंडल इट। तो उसको जब हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विच कैन बी ट्रैक्ड डाउन। अभी अच्छा 2 साल पहले मैं अपने फ्रेंड सर्कल में प्रेडिक्शन दे रहा था कि जीएसटी अगर आप में से किसी लोग कभी भी किसी ने फाइल किया हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग करी हो, तो उसमें आप देखेंगे जीएसटी में आप बताते हैं कि व्हाट इज योर टर्नओवर, योर मंथली टर्नओवर, योर क्वार्टरली एंड योर एनुअल टर्नओवर्स। तो ना 1 साल पहले तक अभी सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं था, जबकि इन्फोसिस ने उसे बनाया है कि वो हर महीने का पूछता था ना, लेकिन एनुअल फिर पूछता था, अरे भाई तेरे को 3 महीने का बता दिया तो तेरे को क्वार्टरली का नहीं पता है क्या? तो बोलता था अलग से फीड करो, हम करते थे। दिस टाइम दिस मंथ इन जनवरी फर्स्ट वीक आई ओपनड इट अप एंड आई फाउंड कि पिछले क्वार्टर का जब मैंने दिसंबर भरा तो जनवरी ऑलरेडी फीड अप हो गया। नाउ देयर इज अ थिंग पॉइंट विच आई एम हियरिंग कि वो 6 महीने साल भर के अंदर शायद ये जब इलेक्शंस निकल जाए तो इसको इंप्लीमेंट कर देंगे कि आपकी बिलिंग भी ना जीएसटी के सर्वर पर होगी। इन रियल टाइम द गवर्नमेंट विल नो हु सोल्ड इट, हु बॉट इट, how much they own and where the money is going, what my taxes I am getting in real times. You see, GST इस फॉर्म में जा सकता है, थोड़ी पब्लिक रिलक्टेंस करेगी बट इट विल गो, ब्लॉकचेन विल कम इन, क्रिप्टो करेंसीज विल कम इन, डिजिटाइजेशन ऑफ मनी वो एक फैशनेबल टर्म मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बस डोंट टेक इट बट रीड इट अबाउट इट आल्सो सो दैट यू क्रिएट योर ओन आइडिया अबाउट इट। आई होप थोड़ा सा आंसर मैं कर पाया आपकी बात। यस यस या थैंक यू सर। ये शेर सर अभी आपने स्टॉक मार्केट का करा था, तो सर अगर अडानी ग्रुप के फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो वो इन्वेस्टेबल है आगे के लिए या वो नीचे ही जाएगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है ना, आप में से जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं ना, तो उसमें पहला गोल्डन प्रिंसिपल बिजनेस का क्या है? द बिजनेस हैज टू रन ऑन कंटिन्यूटी, इट नेवर स्टॉप्स। इस आइडिया को मत भूलिए। आपको अडानी को समझने के लिए, व्हाटएवर को समझने के लिए ना, जैसे मैंने वहां पे लिखा जोमेटो की बात, तो जोमेटो की डिलीवरी करके ना जो मेरी लर्निंग रही है, मैंने पूरे एमबीए में अपने 27 साल के पब्लिक लाइफ में इतनी लर्निंग मैंने नहीं करी जितनी मैंने पास्ट 1 महीने के अंदर करी है। टुडे मार्क्स द 1 month ऑफ दिस जोमेटो डीलिंग। आई वर्क ऑन अ शिफ्ट फ्रॉम 8 to 12 और समटाइम्स 8 to 1 o'clock इन द नाइट। तो मजा आ जाता है रोड पे, तो रोड रेजिंग का भी मजा आता है, बाइक का भी मजा आ जाता है, और सीखने को जितना मिला ना। तो आइडिया वाज is this Sumit for real? यस आप Fantastic. ऑर्डर करिए, हो सकता है आज आ जाऊं रात Do को। that. आइडिया क्या था, मैं आइडिया बताना चाहता हूँ बिकॉज दीज जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज शुड अंडरस्टैंड कि ना गेम्बा कहाँ है। द गेम्बा लाइज इनटू द किचन। भाई मेरे को तो पानी उबालना आता है, चाय बनानी नहीं आती, फैक्ट। आई वांटेड टू गेट इनटू closer to business. My idea comes from the Maslow's need hierarchy, wherein the bottom lies रोटी कपड़ा मकान। ये आपकी पहली नीड है। तो आई थॉट कि बहुत दिन से बहुत काम कर लिए, कुछ नया करते हैं, तो रोटी में जाते हैं। अब रोटी में कैसे रेस्टोरेंट खोलोगे यार, एक जगह बैठ के मुझसे काम हो नहीं पाएगा, तो लेट्स गो फॉर क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन के बारे में सारे मॉडल पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया। I'm really enjoying it. Maybe Yeah. किसी दिन चलना, मुझे भी ले चलना साथ में। अरे Let's see. सर नहीं देख Let's पाएंगे see. आप में से जितने लोग अगर जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हैं, अगर मैंने सच्चाई खोल के बता दी ना, आप जोमेटो के ऑर्डर बंद कर दोगे करना। अच्छा। मैंने किचन्स को अंदर से देखा, उनकी वीडियोस बनाई, फोटोग्राफी ली, लात खाते खाते भी बचे क्योंकि उस दिन गलती से बिना परमिशन के वीडियो बना दिया था।
और वो वीडियो बहुत जरूरी था, खाना कैसे बन रहा था। रात को 1 बजे मैंने वर्कर्स के चेहरे की मुस्कान भी देखी है, जो राइडर्स थे उनके चेहरे को भी देखा है, और खाना बनते भी देखा है। आई लैंडेड अप। दिन में क्या है ना, आप काम करते हैं ना, तो आपको ना किचन में घुसने कोई नहीं देता है। रात को ना 10 बजे बाद दैत्य लोग काम करते हैं। माय मदर सेज नथिंग गुड हैपेंस ऑन रोड आफ्टर 10 PM। दैत्य लोग मॉन्स्टर्स होते हैं। तो उस टाइम पे ना जो इंसान होते हैं ना, वो बड़े ठीक से बात करते हैं। मैंने किचन के अंदर से देखा है। मैंने इंडस्ट्रियल किचन देखी है, एंड दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर, टू गो फॉर अ क्लाउड किचन। मैंने उसको सड़क पे सीखा है। वाह, तो गेम किया। तो अडानी के सवाल का जवाब ये है कि भाई, उससे तेरे दोस्त से बात कर जिसने अडानी से बिजनेस किया हो। दे विल टेल यू कि उसका जो इमीडिएट ऑफिस है ना, प्राइसेस में कैसे रगड़ मारता है, कितनी रिसर्च करके आते हैं, एंड हाउ सीरियस दे आर अबाउट देयर फ्यूचर। जिन्होंने उनके साथ 5 साल काम किया वो समझ जाएंगे अडानी इज नॉट, मतलब ही सीरियस बिजनेस। तो अभी जो हुआ है वो ठीक है, बड़े बड़े हिलते हैं, लेकिन बट ही इज गोइंग टू कम अप वेरी फास्ट। माय आंसर टू दिस इज दिस, जब भी मार्केट गिरे ना, सर बॉस पैसे लगा दो, सीधी बात। सर हिंडनबर्ग को आप मतलब क्रेडिबल मानते हो वैसे? नहीं, आई डोंट नो अबाउट हिंडनबर्ग, लेकिन अगर कोई कुछ कहता है ना, तो देखो, धंधा के कुछ उसूल होते हैं, अंदर से साफ रहो, लेकिन धंधा गंदा होता है। अगर मुझे किसी की क्रेडिबिलिटी खराब करनी होगी तो उसकी ना बैड माउथिंग करी जाती है, सिंपल सा रूल है। सर तो हिंडन का तो हमेशा से धंधा शॉर्टिंग का ही रहा है, मतलब वी नेवर absolutely. नो, वी नेवर रहता नो, है। वी मे नेवर नो, यू नो। उनने मनी एक इज अ बैड कंपनी थिंग, मनी सर इज अ उनने एक बैड थिंग। जब वो एक्यूमुलेट होती है ना, तो इट स्पीक्स इन इट ओन टर्म्स। वो अपने आप को सेफगार्ड करने की सारी ताकत लगाएगी। यस। सर उनने एक कंपनी को 99% शॉर्ट कर दिया था एक बार, मतलब इतनी हम्म, बुरी हालत करते हैं ये लोग। इट हैपेंस। यू शुड गो एंड सी अ फ्यू अटैक है। मूवी, द शॉर्ट कॉल और ये सब आप देखो। और मैथ्यू मैकनॉगट की एक मूवी है, द ऑथर आई रिमेंबर मैथ्यू मैकनॉगट, बट आई एम द शॉर्ट कॉल, इस तरह कोई मूवी है, बट यू The शुड Big Short. सी इट। हाँ, सॉरी, The Big Short. द बिग शॉट, यस यस यस। Immediately see it to understand the idea how the money speaks, how economics works, how maths works. Hmm. So any other gentleman, lady? I think it's सर एक बार that- शॉर्ट सेलिंग आइडिया it's a दे very, सकते very हैं आप? interesting session. In fact, let me tell you, the whole discussion, I think, has built up a lot of insights. Yeah. और मजा आ गया. In fact, like, I mean, despite where you come from, to start a cloud kitchen, in fact, like you yourself went into venturing to understand what happened. I mean, brilliant. This is amazing. I mean, these are real hustlers. Yes, happy. पूछो. सर ऐसे आप अभी ऐसे खाना की बात कर रहे थे, क्लाउड हाँ, किचन की। सर मैंने हाँ, मेरे घर के पीछे से नर्सरी है सर, हाँ। मैंने आर्मी का बनता हुआ खाना देखा था सर। उनका जो आटा है सर, पैरों से उनको गूथा जाता है सर। नहीं, वो तो पुरानी बात है, आपको नहीं पता होगा। अपने दादाजी से जाके पूछो कि ब्रेड को उस जमाने में क्या कहते हैं, वो बोलेंगे पाव रोटी। पाव रोटी मीन्स व्हाट? पाव भर मतलब 250 ग्राम्स नहीं, पाव, पैर से जो कुछ ली जाती थी। भाई, उतने बड़े आटे को मशीन नहीं होती थी, हाथ से करोगे यार, मसल्स बिल्डअप होके खुद ही बाहुबली नहीं बन जाओगे। तो यू नीड पैर से। अब पैर साफ होते हैं, हाँ मतलब सर। ट्रेडिशनली है। वो तो हाथ से ही बना रहे हो यार, आपके नेल्स में कितने जर्म्स है, हु नोज। यस सर। मशीनरी तो अब आई है ना। सर जोमेटो में भी सर ऐसा ही कुछ होता है, मतलब ऐसे ऐसे तो मशीन होगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कहना गलत होगा, हाँ। लेकिन आप जिसे घर का खाना कहते हो ना, जिस दिन आप जोमेटो की या किसी भी रेस्टोरेंट की किचन देख लोगे, मैंने रात को 1 बजे जब आप जाओगे ना, तो खुले में आपको ना KFC, आई विल यूज दैट टर्म जो बोलना नहीं चाहिए, KFC, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स को भी ना नंगा देखा है ना। तो ऐसा भी खराब नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हाँ, आपको घर के खाने की इज्जत समझ में आ जाएगी वो क्या होता है, ये तो तय है। यस सर। सर या सर एक बार शॉर्ट सेलिंग का बता सकते हैं आप? शॉर्ट सेलिंग, अब ब्रदर, उसके लिए ना बहुत डेप्थ में ये जाना यार इस पे पड़ेगा एक कि तुम ना एक छोटा सा YouTube का वीडियो देख लो, 5 मिनट का, वो ज्यादा क्लियर कर देगा. वो ज्यादा क्लियर कर देगा, है ना? राइट। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये डिस्कशन वाला है ना पॉइंट. बस इसमें एक लाइन बोल देता हूँ सर, एक लाइन बोल देता हूँ। हाँ, श्योर. किसी बड़े बुजुर्ग ने ना मेरे फॉर्मेशन के डेज में मुझे सिखाई थी, सब समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है। मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, दैट्स इट। Yeah. On that note, we can end this brilliant, amazing session. In fact, like Sumit, you have been fantastic. थैंक यू मुझे सो लगता मच है सर। काफी engaging रहा. I would be seriously wanting the listeners
कि अगर वो अपने कमेंट्स इस पे दे पाए कि हाउ डिड दे फील अबाउट इट, क्या उनको कुछ समझ में आया, बिकॉज इट्स नॉट वेरी रेगुलर दैट आउटसाइडर्स कम एंड दे ब्लो योर माइंड अवे. एंड वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन, इनफैक्ट लॉट ऑफ पॉन्डरिंग पॉइंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो समझने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें को समझना है ये समझ में आया, और हाउ टू पुट अ पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड. स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजी में भी कैसे आ सकती है, विच इज़ लाइक definitely coming from Sumit being a great reader himself. He's a voracious reader, and I think, in fact, like you would have devoured more number of books than all of us put together. In fact, that I fairly can अरे ensure. नहीं सर, Sitting अरे amidst नहीं सर. अपने आसपास देख लो, 2-4 हजार किताबें तुम्हें दिख रही हैं अभी पीछे, right? हाँ सर, So इस वक्त you 6,000 है लेकिन पढ़ी नहीं है कुछ भी. बेचा बहुत है. I know, being a publisher, it comes from that. So, guys, I would be seriously wanting you to give your comments about the session. Sumit will definitely Thanks, love sir. that. It was really an enriching session, and Thank you we so got much. to know that the base is trust in technology. Very Yes, true. yes. Always is in human relationships too. Great, Yes, sir. great. You can speak about it or you can write it out. In fact, definitely, we would love it. आप में से कुछ लोग इंटरव्यूज में जाओगे ना अभी, सारे जाएंगे. Yes, sir. तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जस्ट फोकस ऑन दिस, उसके अनुसार उसके चारों ओर अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग 2-4 वर्ड्स आते हैं ना, यू कैन स्पीक. अगर जब आप हार्ट से बोलते हैं ना, इट साउंड्स लाउडर देन द ट्रूथ. तो गो फॉर इट. यू हैव अ गुड ग्रेट लाइफ अहेड. यंग पीपल विल डू वंडर्स. I'm very, I trust this. सर इट इज वेरी इमेजिंग सेशन. सर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे, मतलब रियलिटी Thank पता you. पड़ा ये. Thank you. बहुत बढ़िया. So you just sir, I write. just I'm want very to ask sorry to you, disturb you. sir, if someone wants Sir, to get into IoT business section, like अरे आपने क्वेश्चन पूछा था, यही तो उसका जवाब है कि भाई टेक्नोलॉजी का मजा ये है कि कोई भी घुस जाता है. जस्ट हैव अ हार्ट कि कुछ नया करना है. टेक्नोलॉजी खुद आपको भी पहले उसको पढ़ने के लिए आपको अरबी, फारसी, उर्दू आनी चाहिए थी. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप टर्म्स में बात करोगे, टेक्निकल टर्म्स में, तो अगर आप में से कुछ कंप्यूटर साइंस से हो तो आप समझोगे कि पहले कोडिंग के लिए आपको सी शार्प, हैश, ये सब आना चाहिए होता था. उसके बाद कम जावा, इजी हो गया, लोगों की लाइफ बदल गई. जावा 11th में पढ़ाया जाने लगा, आप में से कुछ ने पढ़ा भी होगा. कम उसके बाद पाइथन आ गया, पाइथन अब 8th में आ गया है. तो द लैंग्वेज इज बिकमिंग मोर एंड मोर इजी, इंटरेक्टिव है. तो कुछ नहीं सीखना है टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करने के लिए, बस उसी तरह जैसे दोस्त को जाके आप हक करते हो, क्या हाल चाल तेरे, बस उतना ही है. yes sir, but B school में कौन सा स्पेशलाइजेशन होगा इसके लिए? आईओटी में, टेक में होता है, टेक में Yes, sir, और tech में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलता है, बट दैट इज सेकंड ईयर एंड वेरी स्पेशलाइज्ड. और डेटा देखो एनालिटिक्स आज अभी की इसमें ज्यादा है. I'll just Sumit intervene here Yeah. overlapping you. तो इसमें देखो मैनेजमेंट में क्या है ना कि मैनेजमेंट छोड़ दो, आने वाले समय में खासतौर से तुम जब अभी स्टार्ट करने जा रहे हो और एआई ने इतनी बड़ी दस्तक अभी दी है जितना पहले कभी टेक्नोलॉजी में ने धमाका नहीं किया है अचानक से. तो तुम ये मान के चलो कि तुम चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अपने अंदर एम्बेड करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी और चैट जीपीटी टाइप चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो एआई के साथ तो अब बिना एआई के काम नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारी ह्यूमन इंटेलिजेंस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी लाइक speaking volumes as to how are you going to use it. आज की डेट में what your answer is going to be is not that important. What is more important is what is your question. तुम्हें प्रश्न पूछना आता है कि नहीं. So your ability of asking relevant questions, creative questions is something that will provide you automated answer. तुमको आंसर अब नहीं देना है, ये समझ लो. So हाँ, फिनटेक वगैरह है, बट वो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें बहुत ही कम टाइप के लोग जो फाइनेंस को डीपली जानते हैं, टेक्नोलॉजी को डीपली जानते हैं, सरफेशली जान के नहीं चलेगा. सो वो सब छोड़ते हैं, बट यहाँ समझो कि तुम्हें अब अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इन्विगोरेट करना है, उसको इवेंचुएट करना है, और साथ साथ तुम्हें टेक्नोलॉजी भी सीखनी है. अब मतलब ये दो अलग चीजें है ही नहीं है. These are inseparable. This has become one, and I think this is the need of the hour. I think Sumit, you will also reckon this is what is happening. Yes, yes, wonderful, wonderful. अभी सर ये सेशन देने से पहले जब मैंने अपनी पीपीटी बना ली तो कहा कि जब सब बोल ही रहे तो करके भी देखते हैं. I asked ChatGPT to create a presentation on future of technology. यही लिख के बोला. अच्छा, उसने जो रिजल्ट दिया which was 90% similar. मैंने कहा ठीक है, चलो. फिर मैंने कहा इतना तो तुमने कर दिया, अब चलो इसकी पीपीटी भी बना दो. And you guys will be surprised to know उसने क्या बोला. उसने बोला
I will say sorry, I failed to give you a visual presentation. Oh, It wow. had limitation at that time, Hmm. which we But there are humans. many other AI models, in fact, which can make a PPT for you. Not Yes, exactly, but then they can actually use this data. yes, तो yes. आज की डेट में डेफिनेटली ये काम हो रहा है, बट तुम्हारी इंटेलिजेंस को बीट कर पाएगा? जैसे बहुत बढ़िया कहा सुमित सर ने कि कैलकुलेटर जब आया था तो लोगों ने कहा था कि सब खत्म हो जाएगा, सबकी जॉब चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें टिप ऑफ द पिरामिड पे या टॉप ऑफ द पिरामिड के सेक्शन पे वही लोग जा पाएंगे जो अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और क्वेश्चनिंग एबिलिटी को होन करेंगे। और इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो काम एआई नहीं करता है। तुम्हें उसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा, जो काम एआई नहीं करता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। आदित्य, शुभिका, लास्ट 2 क्वेश्चंस। आदित्य, स्टार्टिंग विथ यू। Sir, as a friend of mine was talking about short selling, I was watching a video about it. I didn't understand only one thing. How can you sell something if you don't have it? That's मतलब मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि what you do, you just sell first and buy later. And how is that possible? देखो, तुम्हें बता रहा, तुमने पूछ ही दिया। इसमें क्या होता है शॉर्ट्स, तुम वैसे तुम एंथुजियास्ट हो, यू ऑल शुड बी लाइक वाचिंग दिस बिग शॉट, बिकॉज अभी जो अदानी वाला इशू हुआ है ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक फर्म होती है, वो सिर्फ इस बात पे रिसर्च करती है, उसका पूरा रिसर्च पॉइंट, देखो शेयर 100 रुपए का है, राइट? तुमने इसको खरीद लिया, वो 120 रुपए का हो गया, तुमने बेच दिया, तुमको 20 रुपए की प्रॉफिट हुई। ये अंडरस्टूड है, राइट? लेकिन शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि शेयर अगर 100 रुपए या जो भी चल रहा है, ये फर्म्स बेसिकली ये रिसर्च करती हैं और ये कहीं ना कहीं से अपने रिसर्च को घुस करके सही तरीके से, गलत तरीके जैसे भी, जिससे इनको ये पता चलता है कि किस चीज का शेयर कितना गिरने वाला है या कितना गिर सकता है, तो वो उसके बेस पे डेफिनेटली दे ऑप्टेड आउट। इनफैक्ट अब वो क्या करेंगी, तुमसे वो शेयर खरीद लेंगी, तुमसे शेयर ले लेंगी वो, राइट? ले लेंगी, तुम हमें आज के रेट पे अपना शेयर दे दो, राइट? उधार दे दो, गिरवी दे दो, बेच दो, जैसे भी करके। और इन लोगों में चलता है ये। अब तुम्हारा शेयर लगातार बढ़ रहा है, बट इनको पता है कि तुम्हारा गिरने वाला है, कुछ ऐसा है, जो भी है। तुमने 100 रुपए पे अपना शेयर उनको दे दिया, राइट? अब उनके हिसाब से 10 में 8 बार ऐसा होगा, अगर उनकी रिसर्च अच्छी रिसर्च फर्म है, कि शेयर के प्राइसेस गिरने शुरू हुए और उनको पता है कि ये 20% तक गिरेंगे। अब वो जब 80 रुपए का शेयर था, तब उन्होंने तुमको एक, हाँ, इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हें कब तक वो वापस कर सकते हैं, तो ये सब कुछ अंडरराइटिंग होती है इसकी, राइट? और उन्होंने तुम्हें वो शेयर वापस कर दिया। अब इसको 20 रुपए का तुमको उस पर्टिकुलर चीज को प्रॉफिट हुआ, तुम्हें उसका लॉस हुआ। तो देर आर, अब तुम ही बोलोगे कि मेरे पास अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं इसको क्यों करूंगा, क्योंकि वहां पे भी वो ऐसी भी फर्म्स है जो जानती है कि हमेशा ये सही नहीं होता। तो देखो, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे बायर जो कि शेयर खरीद के पैसा कमाना चाहते हैं, से भी एक बड़ा गेम होता है जिसमें इंडस्ट्रियल बायर्स हैं बहुत सारे। अब तुम सोचो, एक फटीचर से दिखने वाले स्टार्टअप में जाके किसी ने $1 मिलियन लगा दिया, उसको पता भी नहीं है कि ये डूबेगा, कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉर्पस है पैसे का कुछ लोगों के पास या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास कि वो ऐसा कर सकती हैं। तो वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशंस, दे डोंट माइंड उतने शेयर्स को डंप करने के लिए, राइट? तुम बिग शॉट को देखो, तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली ये है क्या, एंड देन यू लाइक कमिंग टू टर्म्स विद कि हिंडनबर्ग एग्जैक्टली है क्या, राइट? तो उसमें आई थिंक दे सेल हाउस मॉर्गेज स्टॉक्स, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो फिर हम बोल सकते हैं कि हिंडनबर्ग को भी फायदा हो रहा है इससे। एग्जैक्टली, सो दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, यू शुड गेट योर ओन दिस थिंग, बिकॉज तुम्हें वो देखना चाहिए, जैसे सर ने भी कहा, मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, उसको देखना चाहिए। शुभिका, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। Sir, I was asking that what does MBA IB stands for? Sir की first slide में था। अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस। Okay sir, thank ठीक you. है, चलो। Okay, Sumit, thank you so much. It was a fantastic and very valuable session, in fact, I would say. Thank you so much. Because Thank you so these much. kind of discussions usually doesn't happen with the non-techies. So I think there are many people who are from tech background as well, but there are mostly people who are non-tech. But अब चूंकि आज की डेट में टेक सबकी समझ में थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, उसको उस लेवल पे जाके जहाँ पे समझना जरूरी है एकेडमिकली, कि अगर आप क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर एम्बेडेड आंसर्स आपको देने हैं या पैरेलल आंसर्स अगर देने हैं, तो यू शुड नॉट बी लाइक फीलिंग कि यू आर अ डम। तो आई थिंक ऑन दैट नोट इट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग हैपनिंग। इनफैक्ट तुम हैप्पी हो जाओ, राइट? नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं तुम्हें। बाकी सबसे मैं पीपीटी को शेयर कर दूंगा। यू कैन थैंक यू Sumit ji for that also, because he has consented to share the PPT, right? All right, guys. So thank you very much, right?
Stay in peace, prepare well, and more such sessions in the offing. Good night. Good night, Good Sumit. night, sir. Good night. Bye. Thank you, sir. Good night and thank you, sir. Night. Thank you, sir.